Assalamu alaikum and welcome back to my channel. Happy Ramzan Mubarak. I am Mushammad Mushara Khatun of grade 5. तो आज हम करेंगे एक रमजान की ड्राइंग वीडियो। उससे पहले हो जाए एक शायरी। तो शायरी है रमजान के बारे में, तो शुरू करते हैं शायरी। रमजान की रोशनी रहमतों का सम्मान, रमजान की रोशनी रहमतों का सम्मान, हर इबादत में छुपा है सुकून का अरमान। रोजा नमाज और दुआ का है नूर, जन्नत की राहों का ये है मंजूर। शहरी की बरकत इफ्तार का नूर, हर सजदा करे रब को मशहूर। गुनाहों से तौबा दिल को सजाना, रमजान है मौका रब को मनाना। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारी रमजान की ड्राइंग वीडियो। गाइस, इस वीडियो भी पहले वीडियो की तरह बहुत मजेदार है, तो लास्ट तक देखते रहिए और हंसते रहिए, सीखते रहिए। So let's draw it. First, you have to make a moon like this. Till here you have to draw that can adjust both of them. Or you can take a geometry and draw a circle. You can make between a curve line. That's it can make a moon. So moon upper part is done. Now the between one. I'm just expert in moon, that's why. I just draw without pencil also. Like this. Now the half part. Done. See, after the moon, you have to make our Baitullah Kaaba. So, for that, you need a scale. First, the scale should be not straight, it should be some crossed. Like this. And from here, a straight line. Like this. Now, once again, a cross line from here. Like this. And like this. So the box is done. Now it's time to decorate. So first, this box, you have to draw a line, and here also. In down also same line. It should be a parallel line. After doing this, in some down you should do a curve lines like this. Double lines. After that, you can take a scale and draw line, but don't go near like the box and touch the corner of it. After doing this, you should draw the wall of it in the down part, like it likes to that the Baitullah Kaaba is there, and they are wearing the gloves to it, and the down part is shown. So that's why you have to draw a straight line. After that, you have to draw lines like this. And here too.
So see, our Kaaba is done. Now it's time to draw the Medina. So for drawing it, you have to draw a straight line first. After that, you have to draw here a straight line. Then you have to start the drawing of Medina. Now you have to draw the Medina's windows. So for drawing that, you should first take the sleeping line. First, you have to make 3 sleeping lines. So 1, 2, and 3. Now you have to draw the windows like this. How the video is shown in the here. Now 2 like this. You have to draw 3 horizontally. Now you have to draw giving them so many gaps windows like this. So the Kaaba's windows is done. Now you have to take a line from here for looking like it's turning over here. Then you have to draw 6 holes. Like first should be like this. Second, 2 down. And the third will be 3 down. Now it's time to draw the Minar. Before that, the Medina's top one is not done. Like this. Dot, dot, 3 dots and a straight line. Now it's time to draw the pillar. So for drawing the pillar, you should take a straight line and should make to it. Then after that, you have to take one more like this. Now with the help of the scale, you can draw a straight line. 2 parallels like this. After that, you have to draw in between like this a straight line, one more straight line and draw 2 parallel lines. Now you have to draw one oval shape. After that, you have to make like the window how you made in Medina. After that, you have to make a Y shape like it. After that, you have to make again 2 windows. After that, you have to margin the line, one more line. After that, you have to make one more small shape like this Medina. After that, you have to draw a circle between it. After that, we have to draw 3 dotted lines and you have to draw a moon like this. And your drawing is complete. Now, the moon drawing is complete by the Kaaba, Medina and the Minar. Now, it's time to draw to decorate it look nice. We have to draw the down part. So for drawing the down part, we have to straight one line, 3 lines one side and here also 3 lines. If we take like this 1, 2, 3 and from here 1, 2, 3. That means there will be a one line in middle and two to both sides. So let's draw two lines. And you have to draw this. First, you have to make like Medina shape. After that, you have to make a step. Then you have to line. After that, you have to make a box. After making the box, again one Medina shape like it. After that, 3 dots. 1, 2, 3. And 2 parallel lines. Like this. After that, in between,
legs. Now in next, you have to draw same thing. First, you have to make a Medina shape. After that, you have to make a triangle, rectangle. After that, you have to make a box, two parallel lines, and one flaming. Three dots. Two are done. Now more three. Let's draw the middle one. Same thing you have to follow. And if you're drawing with a marker, make sure that it is not getting damaged. Done. Now more two. So let's do it. Let's finish this. It's done. So guys, I want to tell you one thing. मैं आपको आज मैं मेरे मन की चीज बोलने वाली हूँ. तो एक्चुअली गाइस, तो मैं छोटी थी ना, तब मेरा सपना था, अभी भी है, जब तक मैं बड़ी हो जाऊंगी, मतलब कि इसके बाद बूढ़ी हो जाऊंगी, तब तक ख्वाहिश रहेगी जब तक मुझे इधर ना लेके जाए. तो एक्चुअली गाइस, मुझे ना बैतुल्ला काबा है ना, उसमें जो बकरीद की मेन हज होती है ना, मुझे उसके मतलब कि मेरे को उधर जाना है मेरे मम्मी डैडी के साथ, और मेरे बाबा के वास्ते दुआ करनी है और सबके वास्ते दुआ करनी है. फिर मुझे काबा के बाद मुझे जाना है मदीना मनव्वर में. उधर जाके मैं मेरे जी भर के आंखों से मैं उसे देखूं और उसे एक बार छू के, जैसा इंसान गले लगाते हैं ना, तो मैं उसको गले लगा के मैं मेरे बाबा के वास्ते रो के दुआ करना चाहती हूँ. और मेरे मतलब कि सारे जो इंसान है ना, उन लोग के वास्ते दुआ करना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं उधर जाके बहुत दुआ करने वाली हूँ, रो रो के, क्योंकि हम लोग का क्या है, कभी एक दिन अच्छे रहे तो दूसरे दिन कुछ मुसीबत आ जाती है. मेरे डैड के लाइफ में कभी उन्हें खुश रहते, कभी दुख रहते, तो इसलिए मैं मेरे बाबा के वास्ते दुआ करना चाहती हूँ. तो और जो बैतुल्ला कबा है ना, उधर एक और चीज़ करना चाहती हूँ. बैतुल्ला कबा के ये जो कॉर्नर है ना, उधर एक गोल सा आंखों की तरह वाइट दिखने वाला चीज है, उसे हम हजारे आश्वत कहते हैं. आप क्या बोलते हैं, आप कमेंट में बोलिए. तो गाइज, मैं उसे मैं जैसे मेरी मम्मी से सुनी, वो बहुत चमचमाता हीरा से भी नूर थी उसकी. तो वहाँ पे क्या करते इंसान, वहाँ पे जाके उसे चूम के रो रो के जितना भी तकलीफ है उधर पूरा बोल देंगे. तो एक्चुअली क्या होता है, तो उधर जब भी हम बोलते हैं ना, तो वो गुनाह माफ हो जाती है. जैसे कि हमारे दो कंधों पे दो फरिश्ता है, जो राइट साइड में है वो है किरामन, और जो लेफ्ट साइड में है वो है कातिबिन. तो किरामन जो है ना, वो अच्छे काम हमारे लिखते हैं, और जो लेफ्ट साइड में कातिबिन है ना, वो हम जो हर महीने या फिर हर साल, जो भी मतलब पूरे ईयर का, हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वो पूरे गुनाह लिखेंगे. तो एक्चुअली अगर हम दुआ करेंगे कि हमारे गुनाहों को माफ़ कर दिए जाए, तो अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देंगे. अगर हम उसे चूम के दुआ करें, जितना भी रो रो के दुआ करें ना, तो वो है ना, अल्लाह उसे माफ़ कर देगा और कातिबिन को बोलेगा कि ये नेक्स्ट टाइम से अच्छा करेगा, अब इसका जो पूरा गुनाह है उसको मिटा दी जाए, यानी कि मैं उनको माफ़ कर रहा हूँ. तो गाइस, अगर मैंने बोलने में कुछ भी गलती कर दी है, तो आप
माफी चाहती हूँ। और दूसरी बात, आप कमेंट में लिखिए कि मैं क्या गलत हूँ। और मदीने में इसलिए जाना चाहती हूँ कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी उम्मत है, उन्हों कहाँ रहते थे, कैसे गुजारा करते थे, मतलब कि उनके पूरा जीवन की कहानी मैं जानना चाहती हूँ। ये मेरा बचपन से ख्वाहिश है। मैं कभी भी ये ख्वाहिश को भूलना नहीं चाहती। जब मैं ऑफ टाइम में बैठती हूँ, मेरे मम्मी से पूछती रहती हूँ, तो मेरे मम्मी बोलते हैं कि तुम क्या हमेशा इसी में इन्वॉल्व रहते हो, क्या हमेशा पूछते रहते हो कि कब क्या हुआ, क्या कौन सा हुआ, सब चीजें पूछती रहती हूँ मैं। तो गाइस, मैं आपके वास्ते जरूर दुआ करूंगी इस रमजान में। प्लीज आप भी मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा कि मैं हज कर सकती हूँ। मेरे बाबा के वास्ते भी दुआ कीजिएगा, क्योंकि मैं मेरे वालिद जो है ना, मेरे बाबा जो है ना, मैं उनको बहुत चाहती हूँ। वो मेरे बचपन से, जब तक मैं जिंदा रहूंगी ना, तब तक उन्होंने मेरे फेवरेट रहेंगे, क्योंकि मैं मम्मी से ज्यादा मेरे बाबा को प्यार करती हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। लाइक अगर मैं कुछ भी चीज चाहूँ तो एक चीज मांगूंगी तो दो चीज देंगे, ऐसे है मेरे बाबा। तो गाइज, मेरे बाबा के लिए जितना से मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और मेरे मेरे मुसीबत जो सारे, मतलब कि मेरे जिंदगी में है ना, मतलब कि जो आने वाले हैं, तो वो सारे मुसीबत के लिए दुआ करना कि मैं वो सारे मुसीबत झेल सकूं। और अल्लाह करे कि इस रमजान के महीने में मेरा कोई भी मुसीबत ना आए। मैं भी आपके वास्ते दुआ करूंगी गाइस। तो चलिए, इसको और भी डेकोरेट करने के लिए इधर लिखूंगी मैं रमजान मुबारक उर्दू में। मैं इधर बाद में लिखूंगी, लाइक जब मैं ये कलरिंग कंप्लीट करूँ ना, तब लिखूंगी। ठीक है गाइस, आप एंड तक रहिए और देखते रहिए, हंसते रहिए, मजा कीजिए। ठीक है ना गाइस? और ज्यादा से ज्यादा दुआ कीजिए। मैं सो गाइस, इट्स टाइम फॉर कलरिंग। सो फॉर कलरिंग आपको चाहिए येलो कलर। तो अब हम करेंगे येलो कलर। तो ये जो चांद है ना, इसको पूरा पहले येलो से कर दो। ध्यान रखना है कि ये हम ऑयल पेस्टल से कर रहे हैं, यानी कि तो अब इसके बाहर ना जाए। तो गाइस, अभी मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हम ऐसे, मतलब कि इस रमजान में हम ऐसे वीडियोस छोड़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम कौन सा इस्लामिक पेज या फिर कुछ भी सेंड करें, उसके लिए क्या आप हमें कमेंट कीजिएगा प्लीज। मुझे इस्लामिक वीडियो छोड़ना पसंद है। तो चलिए अब कलरिंग पे फोकस करते हैं। इसके ऊपर से लाइट शेड, मतलब कि थोड़ा मीडियम डार्क करेंगे। हमें इसके ऊपर से एक और कलर देना है, इसलिए अब येलो कलर हो गया है। उसके बाद हम यूज करेंगे गोल्डन कलर। तो ये कलर को थोड़ा लाइट शेड करके देना है, ऐसा थोड़ा चमचमाता दिखे। जैसे हम लास्ट में से हाथों से पूरा जगह फैला देंगे।
फिर हाथों से अब यहाँ पे फैला दीजिए। इसको थोड़ा सा डार्क करना है, फिर हाथों से फैला देना है कुछ इस तरीके से। ऐसा ही सेम फॉलो करना है पूरे चांद को। इसको आप डार्क भी कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो चांद है ना, वो ये कलर का होना चाहिए। जो भी बच गया जगह उस तरफ कर दीजिए। हमारा चांद रेडी है। तो अब करेंगे हम काबा का कलर। तो काबा के लिए मेरे पास था ब्लैक, लेकिन फिर भी काबा करने के लिए थोड़ा रिस्क है, तो इसलिए हम यूज करेंगे कलर पेंसिल। तो आपको कलर पेंसिल में ब्लैक यूज करना है। पहले शॉर्प कर लीजिएगा। मेरा ब्लैक पेंसिल जरा छोटा हो गया था इसलिए। हमारा ब्लैक पेंसिल अब शार्प हो गया है। अब काबा को करेंगे। तो ये जो ऊपर का पार्ट है ना, उसको ब्लैक करेंगे पहले। इस बॉक्स को ना कीजिएगा, मतलब कि ऊपर का पार्ट ही कीजिएगा, कुछ ऐसे। इसको आपको थोड़ा डार्क करना है, क्योंकि काबा का कलर थोड़ा डार्क है। अगर हम लाइट करेंगे तो दिखेगा कि ये ग्रे कलर हो रहा है। ये थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मुझे कलर पेंसिल से ज्यादा स्केचेस और ऑयल पेस्टल्स पसंद है। क्योंकि कलर पेंसिल्स में ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन यही काम लगता है। सॉरी गाइस, एक्चुअली अगर मैं आपको पूरा दिखाती तो ये वीडियो ज़रा लेंथी हो जाता। मैं आपको मदीना का दिखाती हूँ। पहले आपको लाइट ग्रीन करना है। अब कैसा भी लाइट ग्रीन कर लीजिए, क्योंकि हमें इसके ऊपर से डार्क ग्रीन भी देना है। लाइट ग्रीन के बाद अब हमें चाहिए डार्क ग्रीन कलर। इसे ऊपर से लाइट शेड करना है। अब इसे हाथों से फैला देना है। पहले हम पूरा कर लेंगे, फिर हम हाथों से कर लेंगे। बीच का भी थोड़ा कर लीजिए ऐसा, बस। अब इसे हाथों से फैला देंगे। तो देखिए हमारा मदीना तैयार है। तो अब हमें हम जो लिखे हैं ना, उसको थोड़ा कलर कर लेंगे। इसको ब्लैक स्केच से ही करना है, जरा जल्दी हो जाता आप लोगों का। अगर आपको देर नहीं होती तो आप वो ब्लैक कलर पेंसिल से भी कर सकते हो। हो गया, उसके बाद ऊपर का भी कर लीजिए।
मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था तो मैं इसलिए लिख दी और ये कलर कर दी। उसके बाद अब लास्ट ऊपर का ही बचे हुआ है। कंप्लीटेड। उसके बाद हम इंग्लिश में लिख सकते हैं। मैं मेरी हैंडराइटिंग में लिख रही हूँ, रमजान मुबारक। हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है, यानी कि ड्राइंग कंप्लीट होती है। हाँ, देखिए ये बिल्ली को देखिए, मुझे शरारत करने आ गई, पूरा फाड़ के रख देती मेरा हर चीज। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। हमेशा मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा और सबके लिए, और मेरे पापा के लिए भी प्लीज गाइस, मैं आपके वास्ते जरूर दुआ करूंगी। मैं वापस से बोलती हूँ, रमजान मुबारक, बाय।